Hello students, welcome with your SST class. I hope you all are safe and fine at your places, and as I always say that you are listening to your parents and obeying them, because this is what you should do, because as you know that they are doing so much for you, and in these days even your mother is like doing so much things for you, so you should listen to them. Now students, we have done with chapter number 4, means explanation part I have done of chapter number 4. Now we will be start reading some part of reading we have done. Today we will be reading about deserts, and we will be reading about rivers. So for that you need to be on my computer screen with me, and after meanwhile reading I'll explain to you again, means with reading difficult terms and all these things will be clear, and again I'll explain something if something is left in between, or something is like portion is there which is not clear, so that will be also be clear to you. So for that you have to be on my computer screen so that we can finish the reading part, and after that tomorrow I will conduct a quiz. In advance I am telling you, be ready for it, and you can revise your portion so that tomorrow you can give your best for the quiz. Now be with me on my computer screen. So students, we will be reading from there today. Deserts are barren land that receive very little rainfall. I told you कि barren का मतलब क्या होता है. barren का मतलब होता है बंजर, जहाँ पे कुछ भी उगाया ना जा सके. सो डेजर्ट आर बैरन लैंड दैट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है. द रीजन हैड एन एरिड और एन सेमी एरिड क्लाइमेट. एरिड का मतलब होता है ड्राई. सो रीजन वहाँ जो होता है एरिड, और सेमी एरिड मतलब ड्राई या फिर सेमी ड्राई क्लाइमेट होता है. द डेज आर हॉट एंड द नाइट आर वेरी कोल्ड. डेज जो होते हैं दे आर हॉट एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड, बिकॉज वहाँ की जो सैंड होती है वो बहुत जल्दी गर्म भी होती है गर्मी में, और जब ठंडी हवा चलती है, रात का मौसम होता है, तो बहुत ज़्यादा ठंडी भी हो जाती है. मतलब सैंड एक ऐसी चीज़ है जो गर्म भी बहुत जल्दी होती है और ठंडी भी बहुत जल्दी. सैंडस्टॉर्म्स आर कॉमन इन ऑल सीजन. सैंडस्टॉर्म्स मतलब रेत के जो हवाएं चलती हैं, और यू कैन से कि रेत के तूफान. Sandstorms are common in all seasons. Sand dunes or hills of sand are its most common features. Sand dunes मतलब रेत के जो टीले, as you can see in this picture, ये देख रहे हैं आप. Sand dunes or hills of sand are its most common feature. Most deserts have small area of water. मोस्ट डेजर्ट्स होते हैं, ज़्यादातर जो डेजर्ट्स होते हैं उनमें कहीं कहीं पे अगर पानी मिलता है. स्मॉल एरियाज ऑफ वाटर वेयर प्लांट ग्रो एंड पीपल लिव, मतलब जहाँ पे डेजर्ट में पानी मिलेगा या प्लांट ग्रो करेंगे तो पीपल वुड लाइक टू लिव ओवर देयर, बिकॉज क्योंकि वहाँ से उनको दे विल गेट समथिंग टू ईट एंड दे विल गेट सम वाटर टू ड्रिंक. तो ऐसी जगह को क्या बोलते हैं? सच अ प्लेस इज नोन एज ओएसिस. लाइक हॉट डेजर्ट वी ऑल्सो हैव कोल्ड डेजर्ट. जैसे हमारे हॉट डेजर्ट्स होते हैं वैसे ही हमारे कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं. सहारा इन अफ्रीका इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कवरिंग द मैक्सिमम सरफेस एरिया अमंग ऑल अदर हॉट डेजर्ट्स, एंड एंटार्क्टिका इज द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड. सो दे हैव गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ दिस कि सबसे हॉट डेजर्ट कौन सा है एंड कोल्डेस्ट डेजर्ट सबसे कौन सा है. द Now we are having one MCQ. As you can see, the place in a desert where water is found, place जहाँ पे water मिलता है desert में, so it is written there oasis, so you can write it there oasis, and oasis option is there as well, as you can see on the screen. Now we will be reading about rivers. A river is a natural channel, usually of fresh water, that flows towards an ocean, a lake, sea, or other river. A river usually starts high up in the mountain. As I told you कि river शुरू कहाँ से होती है? It starts from the mountain. As it flows, it carries rainwater, melted ice, and snow from the mountains to the plains, lakes, and sea.
तो जो रिवर माउंटेन से शुरू होती है वो वहाँ से क्या लेके आती है, उसमें रेन वाटर भी होता है, बारिश का पानी जिसको आप कहते हो, मेल्टेड आइस, मेल्ट की हुई आइस, क्योंकि माउंटेन से जब आइस मेल्ट करती है तो वो भी रिवर के अंदर ही साथ में आती है, एंड स्नो फ्रॉम द माउंटेन. Majority of the rivers flow into a larger water body like an ocean, sea or large lake. जो most of the rivers है वो larger water body में जाके मिलती हैं, जैसे कि I told you कि ocean में, sea में या large lake में. The end of the river is called its mouth. river का जो end होता है उसको क्या बोलते हैं, mouth. वो मैंने आपको उस दिन बताया था. Now we have studied the 3 stages of river. So these are the 3 stages जो मैंने आपको बताई थी उस दिन. So first stage मैंने आपको जो बताई थी, जब rivers जो है mountains में से निकलती है. A majority of river originate from mountain. In this course the river has very little water. बहुत कम पानी होता है क्योंकि वो आइस से और उससे बनता है, जैसे जैसे आइस मेल्ट होती है. As it flows down the slopes it gains speed and cut a deep वैली. जैसे जैसे पानी नीचे आता है रिवर का, वैसे वैसे जो है उसकी स्पीड जो है बढ़ती जाती है. वाटरफॉल्स आर फॉर्म्ड एट द स्टेज. वाटरफॉल्स आपने देखी होंगी बहुत से हिल स्टेशंस पे. तो वाटरफॉल्स भी इसी स्टेज में बनती है जब पानी हिल्स के ऊपर से नीचे गिरता है. एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कोर्स, अपर कोर्स का एग्जाम्पल इज गिवन देयर. रिवर गंगा ओरिजिनेट्स एट गंगोत्री. रिवर गंगा कहाँ से बनती है, गंगोत्री से, और वो जब नीचे फ्लो डाउन करती है तो कहाँ जाके गिरती है, वो हरिद्वार में. एंड नाउ द सेकेंड स्टेज, द रिवर, हियर इट इज सेकेंड स्टेज. द रिवर एंटर्स द मिडल कोर्स एज इट एंटर द प्लेन्स. जब रिवर मिडल कोर्स में कब एंटर करती है, जब वो प्लेन एरिया पे आके गिरती है. एज द रिवर नाउ फ्लोज ऑन द फ्लैट सरफेस. जैसे जैसे रिवर फ्लैट सरफेस पे आ जाती है उसकी स्पीड जो है कम हो जाती है. मैंने आपको उस दिन एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आप एक स्लाइड से गिर रहे हो, मीन्स आप एक स्लाइड से झूला ले रहे हो, तो आप कितनी स्पीड से नीचे आते हो, एंड इफ़ यू आर जस्ट वॉकिंग तो स्पीड आपकी स्लो होती है. द रिवर नाउ मेंडेज एंड फॉर्म्स लूप्स. An example of this course, river Ganga has this course between Kanpur and Allahabad. उसके बाद प्लेन एरिया पे जब रिवर आती है, मतलब रिवर गंगा नाउ just flowing through the Kanpur and Allahabad. This is again an example कि जब गंगा रिवर गंगोत्री से निकली, हरिद्वार से फ्लो करती हुई, it passes through Kanpur and Allahabad. This is the example of middle course. And this is your third stage. The river enters the lower course and join a bigger water body. So the river enters the lower course. River कहाँ enter कर गई, lower course में, and it joins a bigger water body. अब वो bigger water body में जाके मिलती है कहाँ पे, sea में. The speed of the river is extremely slow. Speed क्या होती है river की, बहुत slow होती है, and it divides into many channels. वो अपने आप को बहुत channels में divide कर लेती है. This forms a delta near the mouth of the river. Now they are giving an example. An example of this river, river Ganga forms a delta as it flows into the Bay of Bengal. मतलब river गंगा जो है, अब उसके बाद जब वो bigger water body में मिलती है, that is Bay of Bengal. So this is your 3 stages of river. And you have given 3 new words as well. Arid I told you कि very dry. बैरन लैंड क्या है, द लैंड वेयर नथिंग ग्रोज, जहाँ पे कुछ नहीं उगता, आई टोल्ड यू. एंड मेंडर्स, टू कर्व और लेट रेदर दैन बीइंग इन अ स्ट्रेट लाइन. मतलब कि कोई चीज़ कर्व होके जाना रेदर देन इन अ स्ट्रेट लाइन. देयर आर पॉइंट्स टू रिमेंबर एज वेल, यू कैन रीड दिस एज वेल. एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग अ question answers or that your book work. A group of mountains is called, group of mountains को क्या बोलते हैं, group of mountains को हम क्या बोलते हैं, range. It is written there, group of mountains. I am going towards the mountain, so it is there. A group of mountain is called a
रेंज. सो ग्रुप ऑफ माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं. वी आर देयर नाउ. यस. अ रिवर फॉर्म्स डैश इन इट्स अपर स्टेज. रिवर अपनी अपर स्टेज में क्या बनाती है? अ रिवर फॉर्म्स वाटरफॉल्स. अभी अभी मैंने आपको बताया कि वो वाटरफॉल की तरह गिरती है अपर स्टेज में, तो अपर कोर्स में इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल. प्लेन्स आर फर्टाइल. प्लेन्स फर्टाइल क्यों है? बिकॉज डिपॉजिट ऑफ रिवर, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, ऑल ऑफ दीज. rivers plains are fertile because it becomes with the deposit of river. So इसका आंसर क्या है? आएगा deposits of river. In the lower course, as the river joins the sea, it forms a dash near the mouth of the river. So जब रिवर जो है लोअर कोर्स में एंटर करती है तो वो क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है. सो नाउ ट्रू फॉल्स आर देयर. अ रिवर पासिस थ्रू 3 स्टेजेस. अभी अभी आपको बताया कि रिवर कितनी स्टेजेस से गुजरती है. येस, इट पासिस थ्रू द 3 स्टेजेस. प्लेन्स आर थिनली पॉपुलेटेड. थिनली का मतलब क्या होता है? कम. सो प्लेन्स क्या थिनली पॉपुलेटेड होते हैं? नहीं, प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड. सबसे ज़्यादा हमें पॉपुलेशन कहाँ मिलती है? प्लेन्स में. सो प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड. सो इसके बाद है हमारा वी आर ऑन ट्रू फॉल्स. माउंटेन्स आर ह्यूज मास ऑफ लैंड. नो, माउंटेन्स ह्यूज मास ऑफ लैंड नहीं है. एज दे आर हिली सो दे आर नॉट अ मास ऑफ लैंड. डेजर्ट्स आर barren pieces of land known for sandstorms. Yes, deserts are barren pieces of land known for sandstorm. So students, these are your true false. Deserts are barren pieces of land known for sandstorms. Yes. And now we have done this. After that question answers that I will send you in PDF. You can write it down from there and we can discuss this as well. And after that I told you tomorrow I'll be asking quiz from you, so be ready for that. Read the chapter thoroughly so that you can answer the question. And now students, we will meet tomorrow. Bye students.